Hello students, welcome to Bloomcap. I'm Vibha Chawla and today we have with us a very special guest, Miss Divya Sizwali. So let me first introduce her to all of you and then we will start with our Q&A session as usual. Okay, so Miss Divya is among us today and she is a student advisor at Empower. Along with that, she is the founder of a student-led initiative, Sapati as well, that strives to include gender-neutral education. Along with that, she is the ambassador of Global Citizens Initiative as well. And that is not it. Along with that, she has received various awards and honors, not only at national level, but also at international level. So welcome Ms. Divya to our session. Thank you so much for having me. Yes. Okay. So let's start with our Q&A session, students. आज मैं आपके बिहाफ पर यहाँ पर मिस दिव्या, who is a youth icon, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देंगी. मैं आपके बिहाफ पे इनसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आई होप आपको वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. सो एंड तक बने रहिएगा. डू नॉट मिस even a bit of this video. Okay, so my very first question for you, Divya, is you have received various awards at national as well as international level. You have understood the education system at both the fronts. So according to you, what is the concept of Olympiads? कौन कौन से एग्जाम्स हमारे ओलंपियाड्स की कैटेगरी में आते हैं एंड क्या वैल्यू एंड एग्जाम्स की, प्लीज लेट अस नो. So, Olympiads are basically competitive level examinations that you give in order to understand where you stand. And it's also for you to understand how good you are in a subject. We have various competitive examinations. So, starting off with India में हमारे पास सबसे famous, JEE है, हमारे पास NEET है. And if you look at abroad, you have so many examinations. You have the SAT, ACT, etc. You also have IELTS, which is one of English proficiency tests and everything. So it's basically for you to understand where you stand, and it's also a medium through which different universities try to take in students, right? And when it comes to importance, I think Olympiads की काफी importance है for the simple reason, as I already mentioned, कि ये एक तरीके से यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस है जिससे वो बच्चों को फिल्टर करते हैं. वो देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है और कौन सा बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में थ्राइव करेगा. राइट. ओके, वेरी वेल सेड दिव्या. एंड कौन कौन सी बॉडीज हैं जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं और क्या ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ये बॉडीज? और अगर हम नेशनल बॉडीज की बात करें, हमारे इंडिया में जितनी भी बॉडीज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, क्या उनका भी कुछ इंटरनेशनल अपीयरेंस है? मतलब क्या इंटरनेशनल बॉडीज से ये बॉडीज कनेक्टेड हैं? जहाँ तक, I mean, to the best of my knowledge, I think they all are independent bodies. Okay. But however, I also believe that these bodies that function in India, so जो भी authority है जो JEE conduct कराती हैं, जो NEET conduct कराती है, another exam called JIMPER, right? कि जितनी भी organizations कराती हैं conduct Olympiads, they are recognized internationally. So I have seen students who have appeared for one of the most competitive examinations, JEE, who have also cleared it and have received their offer letters from MIT, Massachusetts Institute of Technology. So I strongly believe that they are recognized internationally. However, I feel that they are private and individual bodies. All right, all right. And one more thing, there is a myth in our India especially कि ना ऑलरेडी लाइक स्कूल का इतना ज्यादा बर्डन होता है, स्कूल सिलेबस कवर करना इतना मुश्किल हो जाता है, अलॉन्ग विद दैट अगर हमें ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन करनी पड़े तो एक मिथ है कि स्टूडेंट्स के माइंड में कि इतना बर्डन हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है. सो आप तो इतने सारे एक्टिविटीज में एंगेज हो, राइट? यू आर वेरी मच एक्टिव इन co-curricular एक्टिविटीज. सो हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? लाइक हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? क्या आप सजेशंस यहाँ पर स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? आई थिंक सबसे पहला सजेशन जो मैं देना चाहूंगी इज टू स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज. अगर आप इन ओलंपियाड्स और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरुआत से ही करो, एज सून एज पॉसिबल, यू वोंट सी इट एज अ बर्डन व्हेन यू ग्रो अप. एंड कमिंग बैक टू द फैक्ट दैट many students face this issue that they're not able to juggle both their school academics and competitive level examinations. I strongly feel that जो भी आपकी स्कूल की पढ़ाई होती है ना,
वो एक बेस प्रोवाइड करती है Right, जिसके agree. ऊपर जिसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हो, एंड ये आपको एक काफी अच्छा बेस देगी आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो अगर आप इन दो चीज को ढंग से बैलेंस करोगे, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बर्डन। सो अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू स्टार्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल आई वुड से, क्योंकि आजकल के टाइम में कंपटीशन भी इतना बढ़ रहा है, तो Right. जितना जल्दी आप शुरू करो उतना आप एडवांटेज में रहेंगे। राइट राइट एग्जैक्टली कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, इट्स वेरी ट्रू। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितना आप एकेडमिक्स को अच्छे से कर लोगे तो एक बेस आपका तैयार हो जाएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन योर ओलंपियाड्स एज वेल, राइट। ओके। एंड बहुत सी जो बॉडीज है मैंने देखा है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, वो अपनी वेबसाइट पर एक फिक्स सिलेबस लाइक पुट करके रखते हैं। सो क्या ये फिक्स सिलेबस ही होता है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आई थिंक एवरी एग्जाम इज वेरी यूनिक टू इट सेल्फ, वो आपको डिफरेंट चीज़ों पे जज करेगा। तो जितनी भी ये वेबसाइट्स होती हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की, ऑर्गेनाइजेशंस की, ये पूरी आपको एक आउटलाइन देती है एज टू व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द टेस्ट, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज नथिंग विल बी टेस्टेड आउट ऑफ इट। सो आई थिंक ये एक होली ग्रेल या एक बाइबल की तरह काम करता है, पूरा सिलेबस आउटलाइन। Okay, all right, all right. And Divya, you are a youth icon. As I've already mentioned, you are a youth icon. You have represented India not only nationally but also internationally. तो जैसा कि आपने अभी बात भी की कि अर्ली एज से ही लाइक स्टूडेंट्स को ये सब चीजें शुरू कर देनी चाहिए, दे शुड बी कॉम्पिटिटिव एट देयर अर्ली एज, राइट। सो कितना सही है ये स्टूडेंट्स के लिए अगर वो अर्ली एज से ही स्टार्ट करते हैं इन एग्जाम्स को देना? आई थिंक जब आप अर्ली शुरू करते हो, आपके पास टाइम होता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट दीज पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस और हाउ टू गो अबाउट एनी कॉम्पिटिशंस। जितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज को, उतना समझ जाओगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। बिकॉज अगर आप ये सारे competitive examinations देखोगे ना, दे हैव अ पैटर्न, अ यूनिक पैटर्न, एंड अगर आपने उस पैटर्न को डिकोड कर लिया, आई एम प्रिटी श्योर आप थ्राइव करोगे, राइट। एंड एज स्टूडेंट्स सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी है टाइम मैनेजमेंट, एंड आई डोंट थिंक कि हम ये इशू फेस करेंगे अगर हमने स्टार्टिंग से शुरू करा है, क्योंकि एक तरीके से आपके रूटीन में आ जाता है, आपका दिमाग भी उस तरीके से ट्यून हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए I'd say कि starting early is like a big advantage. right, very well said, Divya. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं हमारे यहाँ, वो अलग अलग स्ट्रीम्स में एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या सारे स्ट्रीम्स के एग्जाम देने चाहिए, या फिर लाइक अगर उनको लगता है कि हम इस स्ट्रीम में अच्छे हैं, या ये हमारा पर्टिकुलर ये हमारा स्ट्रीम है तो हमें इसी स्ट्रीम का एग्जाम दे, या जिस स्ट्रीम में वो वीक है उसके एग्जाम देने चाहिए? सो व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस? I think मेरा take है कि I'll go back to the same fact about starting early. तो जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो ना, आपके पास टाइम होता है कि आप हर एवेन्यू, हर अरीना एक्सप्लोर करो, राइट। आई वुड डेफिनेटली से कि व्हेन यू स्टार्ट ऑफ विद ट्राइंग आउट एवरीथिंग एंड स्टार्ट ऑफ विद ट्राइंग थिंग्स दैट यू आर गुड एट। अगर आपको लगता है कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंसेस एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, लेट्स से मेडिसिन, तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि मे बी मुझे नीट के लिए अपेयर करना चाहिए, राइट। बट अगेन आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि इफ यू स्टार्ट अर्ली, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज फर्स्टली ट्राई आउट एवरीथिंग, देखो कि आप किस में थ्राइव करते हो, एंड एक बार आपको अपना नीश मिल जाए, आप उसको एक्सप्लोर करो एंड यू डेल्व deep into it to understand how can you improve in that particular arena. तो ट्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई एटलीस्ट, है ना, हर फील्ड ट्राई करो, फिर देखो कि आपको क्या करना है ना, देन यू नो सेलेक्ट कि आपको इसी फील्ड में जाना है। राइट, वेरी वेल सेड। And Divya, you have represented India on different forums. You are connected with Gen Next as well, right? And you are the founder of Sepati, as I've already mentioned. तो आपके अकॉर्डिंग आज के स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं? लाइक वो किस प्रेशर के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या क्या उसकी नीड्स हैं? एंड वन मोर थिंग कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या क्या एफर्ट्स उसे करने चाहिए उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए, क्या आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर सजेशन देना चाहेंगे? I think एक सबसे बड़ी problem that we as students are facing in today's time is that हम जानते हैं कि आजकल कितने new avenues खुल चुके हैं. There are राइट so many professions that maybe 10 years ago हमने सुना भी नहीं होगा. राइट क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हमारे लिए खुल गए हैं, हम ऑलवेज परप्लेक्स रहते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स या पीपल जो हमसे बड़े हैं, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं,
they can give you knowledge, information, guidance to a very certain extent, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी नई है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी ये है कि समझना कि हमें एक्चुअली करना क्या है। एंड आई थिंक इसको टैकल करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप पहले देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, राइट। किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, किस एक्टिविटीज़ में अच्छे हो, एंड कभी भी कतराओ नहीं कोई चीज़ नई ट्राई करने कोई नई चीज़ ट्राई करने के लिए, लाइक नेवर नेवर हेजिटेट, आई वुड डेफिनिटली से दैट। एंड डू यू माइंड रिपीटिंग द सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन? लाइक व्हाट एफर्ट स्टूडेंट शुड मेक? क्या-क्या आई एफर्ट्स उनको करने चाहिए उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए? I think effort is one, try out everything and find out your niche. Try to find out what you're passionate about, because once you identify things that you genuinely want to do, I would say that you would never see it as a pressure on you. You know, आपको एक burden नहीं लगेगा जब भी आप उस चीज को राइट। करोगे, क्योंकि आजकल इतने सारे लोग comparative examinations के लिए अप्लाई करते हैं। However, मे बी कुछ लोग peer pressure के अंडर करते हैं, कोई अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर करता है, मे बी they genuinely don't want to pursue that particular stream and they're giving the examination for the sake of it. तो वो एक cumbersome और एक burden बन जाता है बच्चों के ऊपर एंड लोगों के ऊपर। तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप जल्दी शुरू करो और आप देखो कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पैशनेट हो। जैसे राइट। फॉर मी, मुझे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, now that I'm even running a business, I'm so certain that I do want to do something in the stream of econ or business, right? And I was able to identify it just because I was open to trying new experiences. So I'd say definitely ये सब कर सकते हैं to overcome this problem. मीन्स इन अ नटशेल ट्राई एवरीथिंग, एक्सप्लोर एवरीथिंग as हाँ much as you can. एक्सप्लोर, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो, एंड देन you will be able to figure out कि आपको एक्चुअल में करना क्या है. What is your passion? That's how you will be able to find your passion, right? Okay, and the way you represent young India, even you represent tomorrow's India, I can say. So, which is tech savvy. आगे आने वाला इंडिया अभी भी हम देखें टेक सेवी है, ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. सो आपके अकॉर्डिंग ये जो एक लाइन है, चाहे इसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें चाहे फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, प्लान प्रिपरेशन एंड प्रॉपर प्रैक्टिस इज द की ऑफ परफेक्शन, ये सेंटेंस कहाँ तक रेलिवेंट है? आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट। आई डोंट थिंक आप कोई भी एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे या उसमें बेस्ट कर पाओगे इफ यू हैवंट प्लान्ड इट, यू राइट। नो। आई थिंक planning is the key. I know so many people who started off studying for competitive examinations not doing very great, but because they had a strategy and because they had a plan, they were able to wrap their heads around it and do extremely well. You know, राइट। it's often said, like, I myself am preparing for the SAT, which is this examinations that you give in order to get into universities in the US and abroad. And I strongly realized that I started to do better because there was a consistency and because I had a planned strategy for it, right? So I think planning is like the key. अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप क्लियर कर पाओगे, एंड अगर आपके पास प्लान है एंड यू आर फॉलोइंग इट रिलीजियसली, then know for a fact that you'll be able to clear these examinations. राइट, तो प्लानिंग इज मस्ट, प्लानिंग जरूर करनी चाहिए आपको. सेकेंडली कंसिस्टेंसी, बहुत लोग होते हैं प्लान कर लेते हैं, टाइम टेबल पूरा बना लिया, बस उसे उस पर टिके नहीं रह सकते ना, दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बी कंसिस्टेंट. सो Yeah, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग एज वेल एज कंसिस्टेंसी इज द की, राइट. absolutely. एंड देयर इज वन मोर मिथ दिव्या कि ओलंपियाड्स आर डिफिकल्ट. मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि ओलंपियाड्स डिफिकल्ट हैं. आपने तो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स फेस किए हैं, सो बीइंग अ कॉम्पिटिटर, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए डिफिकल्ट होना स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा है, स्पेशली स्कूल लेवल पर ही अगर वो इन एग्जाम्स को देते हैं जो उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं, सो कितना उनके लिए जरूरी है? um competitive examinations, olympiads are bound to be competitive. वो होंगे difficult, तभी तो बिल्कुल. you'll be, आप चुन पाओगे who is the best of best or creme of the creme, राइट. right? So I strongly, I mean, I do agree for a fact that the examinations that you have in India especially, they're very rigorous. They it's they push you to think extremely outside the box, and they try to test how well do you um know a concept. So for that, I think having your basics clear is one of the best things that can that you as a person can do. And if you don't mind, could you repeat the other half of the question?
लाइक हाउ कैन मतलब स्टूडेंट्स कैसे इस चीज को टैकल करे, अपना टाइम कैसे मैनेज करे और कितना उनके लिए अच्छा है ये चीज, अगर वो अर्ली एज में यानी स्कूल लेवल पर इन एग्जाम्स को फेस करते हैं तो उनके लिए कितना अच्छा है ये चीज। देखो आजकल पता है प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही बच्चे 10th में आते हैं उनके पास एक डायलेमा होता है स्ट्रीम चूज करने का। जैसे उन्हें स्ट्रीम चूज कर ली, फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है कंपेटिटिव एग्जाम्स देने का, है ना। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप इन सब की तैयारी पहले से ही करना शुरू कर दो। लाइक इट्स नो हार्म टू अंडरस्टैंड कि यू नो हाउ डू यू सॉल्व अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर आप जल्दी शुरू करोगे आप ये शॉर्टकट सीख लोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज एग्जामिनेशंस are MCQ based. They're very objective, है ना। And कभी कभी like personally when I was preparing for the SAT, trust me, questions seem difficult, but there are very small shortcuts that you have that can like help you solve the question in like milliseconds, not even like minutes. Right. And ये तभी आपको हेल्प करेगा जब आपने एक स्ट्रैटेजी बना रखी हो एंड आपने उस चीज को इतना प्रैक्टिस कर रखा हो कि क्वेश्चन देख के समझ जाओ कि कैसे शॉर्टकट इसमें लगाना है। तो आई थिंक जितना जल्दी आप इन कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बढ़िया है, क्योंकि आपको ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज फिट हो जाएगी कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस आई वुड से क्वेश्चन टाइप्स सॉरी आर बाउंड टू गेट रिपीटेड। लाइक आई कांट से कि सेम क्वेश्चन आपके पास आएगा, बट उस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पेपर में। पैटर्न वही रहता है, आपको पैटर्न समझना कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसी की ही प्रैक्टिस करो, है ना। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क मैटर्स। हाँ जी। ओके दिव्या, एनी लास्ट मिनट टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, कोई प्रिकॉशंस आप बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स बेसिकली, एंड हाउ कैन दे एस्टैब्लिश देयर करियर गोल, ओलंपियाड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एनी लास्ट मिनट टिप्स। I think I'd like to say one thing. In today's time, everybody is very ambitious, and I think people do work hard. The only thing that I see in today's time is how much stress people take and how much stress students have been taking lately because of the ever increasing level of competition in today's time. However, I'd say that if you take out this burden of stress from your mind, I think as a student you'd be able to perform much better. तो I'd say कि किसी चीज के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आई मीन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम लाउजी हो जाओ, यू स्टॉप केयरिंग अबाउट द पर्टिकुलर टेस्ट, आई मीन एब्सोल्युटली नॉट। बट अगर आपको पता है कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू आर पुटिंग इन द एक्स्ट्रा एफर्ट, आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर यू टू feel feel the compulsion of being in any kind of stress. So I would definitely say कि आप stress मत करो and always try new avenues. Start early, like as early as you can. Start as early as you can. इतने अच्छे अच्छे forums हैं, like अब Bloomcap भी खुल चुका है, right? Make use of these opportunities, because अगर आप इन चीजों को अच्छे से यूज करोगे ना, ये आप ही को फ्यूचर में लेवरेज करने में हेल्प करेगा। यू नो देन व्हेन यू लुक बैक यू विल थैंक गॉड एंड योरसेल्फ दैट ओ थैंक गॉड आई इन्वेस्टेड माय टाइम एफर्ट एंड एवरीथिंग इनटू सच रिसोर्सेज। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू। Yes, बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल। अगर कंपटीशन है तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर योर हेल्प, तो आप सारे रिसोर्सेज का जितना यूज ले सकते हो उतना लो, राइट। Okay, so it was a very wonderful session with you, Divya. Thank you for having here. Thank you for being here in the session. Thank you so much for your precious time. I hope students को बहुत beneficial लगा होगा, बहुत उनको आपसे inspiration भी मिली होगी. I'm very sure about it. And मन तो नहीं कर रहा सेशन को end करने का. I'm very sad ending this session here, but time को देखते हुए I have to wind up this session here. Once again, thank you very much for your precious time. Thank you for being in the session. Thank you so much for having me. Right. And at last, students, as I always say, keep learning, keep sharing.